Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna and in this video I am going to start IAS and Punjab PCS preliminary more questions current plus static both for 2020 and this is my class number 9th. I requested to you all kindly watch my previous 8 classes जिसमें हमने 80 questions cover किए और हर एक वीडियो में मेरे 10 questions cover होते हैं. So in this video, I will cover 10 question 81 to 90. So let's start with the question number 81. Which of the following statement are true regarding the electronic way bills? ई-वे बिल्स होते हैं उसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट बताया गया कौन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट है ई-वे बिल्स और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स. अब ऑप्शंस क्या क्या मेंशन है एक बार बात कर लेते हैं. इट इज़ मैंडेटरी एज पर द जीएसटी लॉ. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ के अंडर ये मैंडेटरी है जीएसटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वे. इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ द वे बिल विच आर रिक्वायर्ड अंडर द वैट regime एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर गुड ट्रांसपोर्टेड वर्थ मोर देन ₹50,000. 50,000 से ज़्यादा का सामान गुड्स को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब ये यूज़ किया जाता है. इट विल चेक टैक्स इविजन के लिए चेक किया जाता है. दीज आर 4 ऑप्शंस अंडर द इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स. You know, electronic way bills or e-way bill is a document issued by carrier giving details and instructions relating to the shipment of consignment of goods like name of the consigner, consignee, the point of origin of the consignment, its destination and its route. Electronic way bill एक प्रॉपर डिटेल होती है, कैरियर्स डिटेल होती है जिसमें कंसाइनमेंट गुड्स का नेम, कंसाइनी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ क्या इसकी डेस्टिनेशन है, क्या इसका रूट है. एंड इट इज़ अ वैल्यू ऑफ द गुड ट्रांसपोर्टेड वर्थ मोर देन ₹50,000 एंड देन ई वे बिल शुड बी जनरेटेड. अगर कोई भी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तब ये ई वे बिल जनरेट किया जाएगा. एंड ई वे बिल इज़ बेसिकली ए compliance mechanism wherein the way of digital interface the person causing the movements of goods upload and the relevant information prior to the commencement of the movements of goods and generates e-way bills on the GST portal. तो GST के लिए important है. And e-way bill is a mechanism to ensure that goods being transported comply with GST law. तो ये GST के अंडर ही ये proper transport हो and it is an effective tool to track movements of goods and check tax evasion. Okay. And e-way bill under the GST regime replace the way bill. तो ये VAT regime के अंदर था which is a physical document which was required under the VAT regime. तो it is a mandatory as per the GST law, ये भी correct है. It is a replacement of the way bill which is required under a VAT regime. तो this is a physical document. ये physical document था, अब electronic document चलते हैं. And it is required for good transport worth more than ₹50,000. This is also correct. And it will check the tax evasion under the GST. So all are above. Okay, so this is a best explanation of the electronic way bill. Now the question number 82 on your screen. Consider the following statement regarding a goods and a services tax network GSTN. Goods and services tax network. It is a non-government private limited company. First option में ये है. And it is not for profit company. Second option. So goods or a services tax network is a section 8 under the new companies act. Not for profit company are governed under section 8. So it is a non-government company and but cabinet approved a decision to make it wholly on government company. पर गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने ये भी कहा था कि इसको हम प्रॉपर 100% गवर्नमेंट ऑन कंपनी बनाएंगे. And it was incorporated on March 28, 2013. And the company has been set up primarily to provide IT infrastructure and services to central and state government, taxpayers, other stakeholders for implementation of goods and services tax. Okay, so it is a non-government private limited company, yes, but it will fully government owned. It will fully government owned. And it is not for profit company, yes. So answer is C, both 1 and 2. The question is goods services tax network, जो proper tax regime tax collect करती है. Now the question number 83. Consider the following statement regarding the use of Aadhaar for benefit transfer. Aadhaar card use किया जाता है for the direct benefit transfer.
तो द मनी कैन बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जब भी पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से पैसा जो निकलेगा उसी के लिए आधार कार्ड यूज़ किया जाएगा, बेनिफिट्स को ट्रांसफ़र करना है। द स्टेट कैन ऑल्सो यूज़ आधार टू ट्रांसफ़र बेनिफिट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक आधार मैंडेटरी फॉर ऑथेंटिकेशन टू प्रोवाइड एनी सब्सिडी, ये थर्ड ऑप्शन है। और इट कैन यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू इंडिविजुअल हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है रेदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि पैसा जो बाहर से आएगा कंसोलिडेटेड फंड से, ओके, तो मनी जो कंसोलिडेटेड फंड से ड्रॉ की जाएगी उसी का बेनिफिट आधार कार्ड पे बेस्ड होगा, और स्टेट भी इसको यूज़ कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक आधार मैंडेटरी फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ सब्सिडीज एंड, और इसके लिए जो अगर आधार कार्ड बेस सब्सिडी या ट्रांसफ़र चाहिए तो एटलीस्ट 182 डेज से वो भारत में रहता होना चाहिए रिजाइडिंग। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट रॉन्ग है। कैसे? द आधार विच इज टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 is an act to provide for a good governance, efficient, ट्रांसपेरेंट एंड टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द सब्सिडीज। ये जितना भी आधार कार्ड यूज़ किया जाता है ये टारगेट डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज बेनिफिट सर्विसेज, तो ये सारा का सारा पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट्स में आए। द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विच इज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड द स्टेट्स वर अलाउड टू ट्रांसफर बेनिफिट थ्रू अमेंडमेंट डन 2019। तो यहाँ तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो सकता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी हो सकता है। टू इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन इंडिया, तो जो भारत में ऑलरेडी 182 डेज से ज़्यादा रहता हो तो उसकी की आइडेंटिटी चेक की जाएगी। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ ड्रॉन ओनली फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये गलत है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी हो सकता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी हो सकता है, बिकॉज द मनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, ओके, टू फॉर रिगार्डिंग द यूज ऑफ आधार फॉर द बेनिफिट ट्रांसफर। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन गया और ये भी गया, बाकी दोनों करेक्ट है। स्टेट भी है, उसके लिए अथेंटिकेशन मैंडेटरी है और 182 डेज से भारत में रहता हो। तो आंसर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 83। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 84 ऑन योर स्क्रीन। द टर्म पंप प्राइमिंग। तो पंप प्राइमिंग क्या होती है? जब हमारी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए या काफ़ी डाउनफॉल हो जाए तो भारत सरकार खुद से खर्चे करती है, टैक्स कम करती है, खर्चे ज़्यादा करती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, जिससे इकोनॉमी वापस फिर से अपने ट्रैक पे आ सके। दिस इज कॉल्ड द पंप प्राइमिंग। तो पंप प्राइमिंग इज द एक्शन टेकन टू स्टिमुलेट एन इकोनॉमी। ओके, पंप, जो हम पंप को अगर सपोज करो हमारे घर में जो मोटर होती है पंप उसके अंदर, क्योंकि वो अगर नहीं काम करती उसमें पहले पानी डालना पड़ता है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी इकोनॉमी इन्फ्यूज़ करती है, इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज़ करती है, यूजुअली ड्यूरिंग अ रिसेशनरी पीरियड एंड थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द टैक्स रिडक्शन। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी और जो टैक्स है उसको कम कर देगी। द टर्म पंप प्राइमिंग इज ड्राइव फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ओल्डर पंप, a suction valve had to primed with water so that pump would function properly। ठीक है, जो हम घर में पंप यूज करते हैं, पहले पानी देते हैं मोटर को और फिर वो पंप प्रॉपर वर्क करता है। दिस इज कॉल्ड द पंप प्राइमिंग। इट इज़ अ वे टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग टैक्स। तो बिल्कुल करेक्ट है, इससे टैक्स रिड्यूस होता है, करना पड़ेगा तभी इकोनॉमी वापस स्टिमुलेट हो पाएगी। इट इज़ डन इन इकोनॉमिक स्लो डाउन बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ओके, इकोनॉमिक स्लो डाउन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आरबीआई प्रिंट एक्स्ट्रा मनी। ओके, ऐसा नहीं होता, आरबीआई एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट नहीं करता, बिकॉज ये भारत सरकार खर्चा ज़्यादा करती है और टैक्स कम करती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन मोर है, करेक्ट है। ठीक है, मोर क्लियर है। थर्ड, आरबीआई प्रिंट एक्स्ट्रा मनी, वी आर नॉट क्लियर विद आरबीआई एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करेगी कि नहीं करेगी, तो दैट्स वाई आंसर थर्ड यहाँ पर रॉन्ग होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 85, इन्फ्लेशन एक्ट एज अ टैक्स इन इकोनॉमी। अगर हम इन्फ्लेशन को टैक्स कंसीडर करें तो ये कौन सा टैक्स है? प्रोग्रेसिव टैक्स है या रिग्रेसिव टैक्स है? ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइसेस, इंक्रीज इन द प्राइसेस, तो ये एक रिग्रेसिव टैक्स होता है। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज फ्रॉम द 30 to 40, इंक्रीज ऑफ ₹10 फॉर अ पुअर पर्सन अर्निंग ₹1000, इट इज़ 1%। अगर कोई गरीब वर्ग का आदमी है, 1000 रुपया कमा रहा है, उसके लिए वो 1% हो गया, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये बढ़ना। ओके, तो
बट फॉर द रिच पर्सन हुज अर्निंग 1 लाख इज 0.01%। अगर किसी की इनकम 1 लाख है तो उसके लिए 0.01% वो टैक्स हो गया, तो दैट्स वाई it's called the regressive tax. The percentage of his income, poor people is paying 1%, but rich people is paying 0.01%. So hence it is a regressive tax. Okay. So inflation, if inflation act as a tax, so it is called the regressive tax. Progressive नहीं होता. Progressive आपका income tax है. Income tax is your progressive tax. Okay. This is the question number 85. Now the question number 86. Which of the following statement are correct? तो पहला है प्रोग्रेसिवनेस इज अ पर्सनल इनकम टैक्स कैन बी इंक्रीज बाय हैविंग मोर टैक्स स्लैब। तो अगर पर्सनल इनकम टैक्स में अगर हम स्लैब्स और रखते हैं तो प्रोग्रेसिवनेस और इंक्रीज हो जाएगा। एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन हेल्प इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग कंजम्पशन। अगर इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करें तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? देखिए पहला ऑप्शन तो मैं पढ़ ही लिया है, प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स हायर इनकम टैक्स रेट हाई। अगर इनकम आपकी हाई है तो टैक्स हाई होगा, दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव टैक्स। So now in a person income tax we have different slabs. Slabs का मतलब क्या होता है? For income slabs of less than 2.5 lakh, अगर जिसकी सपोज करो 2.5 लाख से कम इनकम है उसका हम टैक्स रेट रखते हैं 0%, और 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम का हम टैक्स रेट रख दे 5%, और इनकम जिसकी 10 लाख से ज़्यादा उसका इनकम टैक्स रखते हैं 30%। दिस मीन्स हु अर्न 15 lakh he also pay 30%, and those who earn 30 lakh he also pay 30%. But if we create another slab, देखिए अगर हम उसमें क्योंकि 10 लाख से ऊपर अगर हम एक और स्लैब रख दें सपोज 20 लाख, तो उसका रेट रख दे 35, देन इट विल बी मोर प्रोग्रेसिव। ओके, सो रीडिस्ट्रीब्यूट, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होती है। एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स टेकिंग मनी फ्रॉम रिच एंड गिविंग इट टू पुअर, दिस इज कॉल्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन। किसी अमीर वर्ग से पैसा लेकर गरीब को देना। When the money is with rich people, it may not increase their consumption because they are already consuming everything. But when it reaches to poor, they will able to consume more than with the same money, will increase the demand of goods and services in the economy. So income redistribution help in the stimulating economy. तो पहला भी करेक्ट है कि जितनी ज़्यादा टैक्स स्लैब्स होंगी उतना प्रोग्रेसिव होगा टैक्स, और सेकंड है इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने से हमारी इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है, ग्रो करती है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों करेक्ट है, तो आंसर हियर इज द सी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट्स ट्रू रिगार्डिंग द 15 फाइनेंस कमीशन। 15 फाइनेंस कमीशन 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा। ओके, 15 फाइनेंस कमीशन, और एक होता है इसका वर्टिकल डेवोल्यूशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। ओके, फॉर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन द पॉपुलेशन ऑफ 2011 सेंसस बी कंसीडर्ड। अगर बोला ये कि हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में जो पैसा सेंटर से स्टेट की तरफ जाएगा या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसके लिए 2011 का सेंसस यूज़ किया गया, ये फर्स्ट ऑप्शन है। एंड देर आर 6 पैरामीटर, और ये पैसा किस बेसिस पे दिया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स को, उसके लिए 6 पैरामीटर्स हैं। ओके, इन विच टैक्स एफर्ट इज वन। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, क्यों? क्योंकि द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स अमंग द स्टेट, एक तो वर्टिकल है, वर्टिकल टैक्स है 41%, ठीक है, जो 42 था अब 41 कर दिया गया हुआ है। बट एज फार एज द हॉरिजॉन्टल टैक्स इज कंसर्न, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न, तो 15 फाइनेंस कमीशन के 6 पैरामीटर्स हैं। देर आर 6 पैरामीटर जिस बेस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। उसमें से फर्स्ट आता है इनकम 45%, इनकम का 45 है। सेकंड है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इसमें 2011 का सेंसस है, तो यही 2011 सेंसस हो गया। उसके बाद है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंसेस कि कितनी डेमोग्राफी है, कितने नौजवान है। स्टेट का एरिया कितना है, 15% है। फॉरेस्ट एरिया कितना है, 10%, और टैक्स एफर्ट्स कितने हैं, 2.5%। तो देयर आर 6 पैरामीटर्स, इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, स्टेट एरिया, फॉरेस्ट एरिया एंड टैक्स एफर्ट। तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट है बिकॉज यहाँ पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन डिफाइन की गई हुई है, और 6 पैरामीटर में एक टैक्स एफर्ट भी है पैरामीटर, तो आंसर इज सी। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 88। Which union territory state per capita state GDP has been taken as a reference by the 15 Finance Commission as an income distance? क्योंकि income distance लास्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो income distance 45% का contribution है as far as the state horizontal distributions are concerned.
तो 15 फाइनेंस कमीशन ने कौन से स्टेट की रेफरेंस की है जिसमें इनकम डिस्टेंस निकाला जाएगा? किसी पर्टिकुलर स्टेट की रेफरेंस तो की गई होगी, तभी तो इनकम डिस्टेंस, तो वो आंसर है हरियाणा। Income distance is calculated as a difference between per capita gross state domestic product of the state from the, okay, and that of the state which are high per capita GSDP। तो एक डिफरेंस होता है इनकम डिस्टेंस। अगर कोई हाईएस्ट रिसेंटली महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु ऐसे कोई स्टेट्स हैं जिनकी स्टेट इन जो स्टेट्स है जीएसटी काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। इनकम डिस्टेंस एक डिफरेंस है, दैट इज़ कि एक स्टेट जीडीपी कितनी है और एक जो जो स्टेट की सबसे ज़्यादा जीडीपी है। तो दिस इंश्योर दैट स्टेट विद अ लेस इनकम गेट अ हाई शेयर इन ऑर्डर टू अलो विद द प्रोवाइडिंग सर्विस comparable to the those provided with the richer ones. And the 15 Finance Commission used per capita GSDP of Haryana with the reference of calculating the income distance at its weightage 45% down from 50% aside in the 14th. तो 14 फाइनेंस कमीशन में इसका परसेंटेज था 50%, बट 15 फाइनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस का परसेंटेज है 45 और रेफरेंस लिया गया हुआ है हरियाणा को। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 88। नाउ द क्वेश्चन नंबर 89। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंडियन एक्सटर्नल डेट। हमारा जो कर्ज है वो भी एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल। इट इज़ अराउंड 20% ऑफ जीडीपी। ये हमारे जीडीपी का 20% है। सॉवरेन डेट इज लेस देन 5% ऑफ जीडीपी। जो सॉवरेन डेट है वो लेस देन 5% है। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज हाईएस्ट शेयर इन द इंडियन एक्सटर्नल डेट। और जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उसका एक्सटर्नल डेट में सबसे ज़्यादा शेयर है। तो तीनों ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, बिकॉज हर महीने ये वैल्यू इतनी चेंज नहीं होती, तो इसलिए 2019 का डाटा यहाँ पर मैंने लिया है। एज ऑफ जून 2019 इंडिया एक्सटर्नल डेट ऑफ जीडीपी रेशो स्टूड एट अप्रॉक्सीमेटली 20%। हमारा जो जीडीपी रेशो था, डेट टू जीडीपी एक्सटर्नल डेट, वो 20% था। एंड आउट ऑफ इट सोवरेन डेट है अराउंड 3.5%। और इंडिया एक्सटर्नल डेट एंड ऑफ द जून 2019 इज 20% of GDP, which is $557 billion, and out of it $200 billion was external commercial borrowing। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट कर्जे की बात करें तो वो 20% एक्सटर्नल, सॉवरेन लेस देन 5% है। ओके, सॉवरेन लेस देन 5% है, यहाँ पर 3.5% का सॉवरेन है। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का शेयर सबसे हाईएस्ट है। ये तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 89। And the last question, question number 19 for this video. Consider the following statement regarding a forex reserve। हमारा भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द कंट्री फॉरेक्स फुली कवर एक्सटर्नल डेट। अभी एक्सटर्नल डेट हमें बताया जा रहा है 557 बिलियन। ठीक है, यही एक्सटर्नल डेट है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे इतना फॉरेक्स है? रिसेंटली पढ़ा है कि फॉरेक्स 400 से 500 के आसपास चलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। एंड द कंट्री फॉरेक्स रिजर्व फुली 1 ईयर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हमारा जो फॉरेक्स है, हम पूरा 1 साल का इम्पोर्ट गुड्स और सर्विसेज का इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये भी गलत है। कैसे, एक बार पढ़ लेते हैं। द कंट्री फॉरेक्स रिजर्व एंड ऑफ February 2020 था 476 बिलियन, बट इंडिया एक्सटर्नल डेट है 557 बिलियन। अभी रिसेंटली हमने बात की जून 2019 की, तो मतलब कर्जा 550 बिलियन है और हमारा फॉरेक्स 450 बिलियन के आसपास है। तो ऑब्वियसली वी विल नॉट पे कंप्लीट एक्सटर्नल डेट। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। और हमारा जो उसके अलावा तो ये तो हो गया गलत। ओके, एंड सेकंड देखिए, और यहाँ पर इसमें लिखा कि हम 1 ईयर इम्पोर्ट गुड्स और सर्विसेज को कर सकते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि हमारे भारत का 1 साल का इम्पोर्ट होता है 630 बिलियन। ये 2018-19 का डाटा है। 1 साल का जो इम्पोर्ट है वो 630 बिलियन है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम 630 बिलियन को कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमारा फॉरेक्स ना तो 1 साल का इम्पोर्ट बेयर कर पाएगा और ना ही 1 साल का एक्सटर्नल डेट को बेयर कर पाएगा। ठीक है, तो नीदर नॉर आंसर। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं इन 9 क्लासेस। ओके, so if you want more classes, kindly subscribe my YouTube channel Pinnacle Study Group,
and like my videos and share my videos kindly. So I will come with more videos based on these questions, and these all questions are important for IAS and the Punjab PCS preliminary. Okay, so this is for today in this video.